In yesterday's class, we have done some questions on partial differentiation, and the concept of homogeneous function we have done, right? So, any doubt in the concept of homogeneous function? You can ask if you have any doubt. I repeat once more. Any function is said to be homogeneous function of two variable or three variable if each and every term has total degree same. If each and every term has total degree same, that function is called the homogeneous function. If this homogeneous function can be written in the form x raised to the power n f of y upon x or y raised to the power n f of x upon y, then this function is said to be homogeneous of degree n. ये हमने कल डिस्कशन किया था कि तीन वेरिएबल का फंक्शन भी होमोजीनियस हो सकता है, दो वेरिएबल का फंक्शन भी होमोजीनियस हो सकता है, और उसकी डिग्री क्या होगी और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? Today we will be talking about the Euler's theorem based on homogeneous function. It's a very important theorem. So just a second, I'm presenting this to you. Can anybody tell me the screen is visible? Yes, sir, visible. Yes, Okay. sir. Okay, thank you. तो हमने कल ये बात की थी कि अगर x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली जाए and the function is of two variable, then it can be written as, if it can be written as in the form of x raised to the power n function of y upon x or y raised to the power n function of x upon y, then this function of two variable is said to be homogeneous of degree n. Similarly, for three variables, four variables, and so on. In general, if the function is of n variables, say f of x1, x2, x3, xn, if the function is of n variables, and it can be expressed like this, right? Then we can say this function is homogeneous of degree n. जैसा कि मैंने आपको कल तीन वेरिएबल के लिए बताया था, f of x, y, z के लिए. Now, a very important Euler's theorem. Guys, just focus on the statement first, then we will do the proof of this theorem. It's very, very important. Just focus on the statement first. If f of xy, which is the function of two variable, is a homogeneous function in x and y of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. This is the first statement of Euler's theorem. Actually, there are two statements of Euler's theorem, two formulas, or you can say two expressions of Euler's theorem, and this is one of them, and it's very, very important. I repeat the statement. If f of xy, which is a function of two variable, is homogeneous function, keep in mind, if f of xy is a homogeneous function of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. अगर f of xy homogeneous function है degree n का, तो x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. This expression you should remember. This is called Euler's theorem, first statement. So voice is not clear. Yes. Am I audible clearly?
Yes. So will you repeat? आपका नेटवर्क Yes, sir. इशू, आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है बेटा. Okay, I repeat. It's a simple statement. You can read it as well. If f of xy is a homogeneous function of degree n, if f of xy is a homogeneous function of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. ओके, ठीक है. चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं. ध्यान से देखिए. Since f of xy is a homogeneous function of degree n, so this f of xy can be written as f of xy is equal to x raised to the power n some function of y upon x. Yes, क्योंकि हमने बताया था कि अगर होमोजीनियस फंक्शन डिग्री n का है, दो वेरिएबल का फंक्शन, अगर n डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. व्हाट वी ऑब्टेन. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 जो है, which is f of xy is equal to x raised to the power n capital F of y upon x. You just differentiate this expression with respect to x partially. तो del f upon del x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे. Okay. So we are differentiating partially with respect to x, so del f upon del x, capital F as it is, x raised to the power n का डिफरेंशिएशन n x raised to the power n minus 1 plus x raised to the power n as it is, कैपिटल F का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ y अपॉन x, और अंदर वाला ये जो y अपॉन x है इसका भी चेन रूल से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, y विल बी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. So del f upon del x is this, which is given by equation 3. Now del f upon del y, differentiating this function with respect to y partially, taking x as a constant. तो x अगर constant है तो x raised to the power n पूरा constant हो गया as it is. अब आपको डिफरेंशिएशन करना है f of y upon x का with respect to y, taking x as a constant. तो पहले f of y upon x का डिफरेंशिएशन हुआ f डैश, फिर y upon x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 upon x, because x is constant and differentiation of y is 1. So del f upon del y is this, which is given by equation 4. सिंपल सा प्रूफ है. अब इक्वेशन नंबर 3 जो है उसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 4 जो है उसे y से मल्टीप्लाई कर दीजिए. Now multiply equation 3 by x and 4 by y और फिर उन दोनों को ऐड कर दीजिए. क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए. So it's quite simple. So x del f upon del x plus y del f upon del y ऐड कर दिया और राइट साइड में आपका ये बन गया. The addition is quite simple. You can calculate very easily. Now you can see that the second part, the second term and third term will be cancelled out क्योंकि दोनों सेम है with negative sign. तो आपका क्या बच गया? n x raised to the power n f of y upon x, और x raised to the power n f of y upon x ये क्या है? यहां से देखिए ये रहा x raised to the power n f of y upon x, ये आपका है स्मॉल f, homogeneous function small f. So this is n f. So x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. Hence proof. Any doubt you may ask.
क्या किया हमने? It is already given in the question that f of xy is a homogeneous function of degree n. If it is homogeneous function of degree n, then we can write this f of xy as x raised to the power n capital F of y upon x. Now differentiate partially this f of xy with respect to x and with respect to y. Multiply equation 3 with x, multiply equation 4 with y, and then add. If we add, then just the simple calculation, we obtain NF. That is x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to n. So this is the first expression or first statement of Euler's theorem. Guys, any doubt you may ask. Otherwise, I will move. Okay. Now, second expression of Euler's theorem. ये भी आपको याद रखना है. This statement is very very important again. आपको पहला वाला फॉर्मूला भी याद रखना है यूलर्स थ्योरम का, और आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी याद रखना है. ध्यान रखना, यूलर्स थ्योरम ओनली अप्लाइज ऑन दैट फंक्शन व्हिच इज होमोजेनियस. कीप इन माइंड, यूलर्स थ्योरम उसी फंक्शन पे अप्लाई होती है जो होमोजेनियस फंक्शन होता है. ठीक है? और अगर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है तो x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf होगा. This was the first expression. Now second expression, if f of xy is a homogeneous function of degree n, then x square del square f upon del x square plus 2xy del square f upon del x del y plus y square del square f upon del y square is equal to n into n minus 1 times of f. Again, very important, you should remember, you should learn this as well. पहला जो आपका एक्सप्रेशन था वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में था, x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. और सेकंड एक्सप्रेशन जो है यूलर्स थ्योरम का वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में है, x square del square f upon del x square plus 2xy del square f upon del x del y plus y square del square f upon del y square is equal to n into n minus 1 times of f. इसका प्रूफ देखते हैं. द प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, और ध्यान रखना प्रूफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली इस एक्सप्रेशन का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन में भी अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो इसके डेरिवेशन में हम फॉलो करेंगे. गाइस, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. यस, ओके, फाइन. ठीक है, हम प्रूफ देखते हैं. इसका प्रूफ इज क्वाइट सिंपल. देखिए, since f of xy is a homogeneous function of degree n, then by Euler's first statement we can write x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. बिल्कुल, अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर f x y होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है तो x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf होगा. We just prove it. So this is equation number 1. अब क्या कीजिए, इस इक्वेशन नंबर 1 का आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए. देखिए, ध्यान से देखिए. डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली, वी ऑब्टेन. सबसे पहले हम इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं. x एज इट इज, del f upon del x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन del स्क्वायर f upon del x स्क्वायर प्लस del f upon del x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y एज इट इज del f upon del y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन del स्क्वायर f upon del y del x प्लस del f upon del y एज इट इज y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0
because we are differentiating with respect to x partially, so y will be constant. इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लिखा क्योंकि सेकंड टर्म आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा. I repeat, for this only y as it is, del f upon del y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन del स्क्वायर f upon del y del x, कल हमने बहुत लंबी चर्चा की थी इसके बारे में, प्लस del f upon del y as it is, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0, that's why this is 0, is equal to n कांस्टेंट है as it is और f का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में del f upon del x. So if we differentiate equation 1 with respect to x partially, we obtain equation 2, which is del f upon del x plus x del square f upon del x square plus y del square f upon del y del x is equal to n del f upon del x. चलिए अब इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में x एज इट इज, del f upon del x का डिफरेंशिएशन पार्शियली y के रेस्पेक्ट में del स्क्वायर f upon del x del y प्लस del f upon del x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली 0, तो हमने यहाँ 0 नहीं लिखा है, 0. ये वाला प्लस y as it is, del f upon del y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली del स्क्वायर f upon del y स्क्वायर प्लस del f upon del y as it is, del f upon del y as it is, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 is equal to n कांस्टेंट as it is, f का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में del f upon del y. So if we differentiate equation 1 with respect to y partially, we obtained equation number 3, which is x del square f upon del x del y plus del f upon del y plus y del square f upon del y square is equal to n del f upon del y. Guys, अभी तक कोई डाउट है तो बताइए. It's a simple mathematics, simple differentiation. Still you have any doubt, you may ask. इक्वेशन नंबर 2. यस सर, यस सर. बेटा अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए. पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको आता है ना? हाँ सर. प्रोडक्ट रूल से होगा, इसका भी प्रोडक्ट रूल से होगा, इसका भी प्रोडक्ट रूल से होगा. हाँ सर. और इसका n कांस्टेंट है और f का del f upon del x. सिमिलरली इक्वेशन 1 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वेशन 3 मिल जाएगा, राइट? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय x and multiplying equation 3 by y and adding, we obtain. तो सिंपल कैलकुलेशन है. इक्वेशन 2 को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 3 को दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए. आप अपनी कॉपी में ऐड करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, सिंपल. तो देखिए क्या मिलेगा, x स्क्वायर del स्क्वायर f अपॉन del x स्क्वायर, क्योंकि आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर del स्क्वायर f अपॉन del y स्क्वायर, क्योंकि इसे आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x वाई del स्क्वायर f अपॉन del x del y, यहाँ पे x वाई del स्क्वायर f अपॉन del y del x आएगा, यहाँ पे x वाई del स्क्वायर f अपॉन del x del y आएगा. और मैंने आपको बताया था कि del स्क्वायर f अपॉन del x del y इज ऑलवेज इक्वल टू del स्क्वायर f अपॉन del y del x. बताया था नहीं बताया था? I told in the last class that fxy is always equal to fyx. That is, del square f upon del y del x is always equal to del square f upon del x del y.
याद है सबको? यस। यस सर। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई दोनों सेम है। आप जिसे जब इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। राइट? अब देखिए हमने कौन कौन सा एलिमेंट काम में ले लिया है। हमने ये वाला काम में ले लिया है, ये वाला ले लिया है, ये वाला ले लिया है और ये वाला ले लिया है। ऐड। अब कौन कौन सा बचा? एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। राइट? तो क्योंकि इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना हमने, और इस इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया है, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। और आपको पता है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू एन एफ होता है। राइट? तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई का वैल्यू एन एफ होगा। उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। ये देखिए n x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। हम एक काम करते हैं, पहले राइट साइड में ले जाते हैं इसको। तो यू कैन सी इन राइट हैंड साइड, ये देखिए यहां पे भी देख लीजिए, एन एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एन वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसमें से n कॉमन आ गया, क्या बचेगा? x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। और लेफ्ट साइड से आ रहा है x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, उसको राइट साइड में ले जाइए। तो कॉमन आ गया x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इनटू n माइनस 1। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो आप अपना पेपर पेन उठाइए, मैं बताता हूं आपको। सिंपल कैलकुलेशन है। इन दोनों को जब ऐड किया, इसे x से मल्टीप्लाई करके और इसे y से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो मैंने बोला ये कवर हो गया। ये देखिए ये वाला, ये और ये मिला के दोनों 2 टाइम्स हो गए, ये वाला और ये वाला ये हो गया। अब बचा कौन कौन सा? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। राइट? अपना पेन पेपर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। जब इसे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, इसे y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये y डेल एफ अपॉन डेल वाई है। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो लेफ्ट साइड में तो बन गया x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये लेफ्ट साइड में बचा। इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़ के बोल रहा हूं। इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़ के लेफ्ट में ये बचेगा और राइट में क्या बचेगा? एन एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एन वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसमें से अगर आप n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? वही x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब आया समझ में सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके। अब आप एक काम कीजिए, देखिए ये दोनों सेम है, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। राइट साइड में भी x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप राइट साइड में ले जाइए। तो सर पूरा का पूरा पॉइंटर दिखाई नहीं दे रहा सर। Now पॉइंटर it's दिखाई नहीं visible. दे रहा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब विजिबल है? क्लियर नहीं आ रहा सर। मैं हाइलाइटर काम में ले रहा हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट नाउ विजिबल। नाउ द Yes, sir. highlighter is visible, right? ओके। तो आप देखिए ये जो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई है, इसको आप पूरा राइट साइड में ले जाइए कंप्लीट।
तो राइट साइड में ले जाके x del f upon del x plus y del f upon del y कॉमन आ जाएगा। ये देखिए कॉमन है, x del f upon del x plus y del f upon, और क्या बचेगा, ये वाला n, और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया इसलिए n माइनस वन। अब आया समझ में? इज इट क्लियर? ओके, नाउ x del f upon del x plus y del f upon del y का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है nf, so you just put the value of this nf, तो आपका बन गया n minus 1 f, hence proof। x square del square f upon del x square plus y square del square f upon del y square plus 2xy del square f upon del x del y is equal to n into n minus 1 times of f. Guys, any question? This proof is very, very important, and it's quite simple proof, and it's very, very important, because in questions, if there is an evaluation of like this, then you have to derive these all expressions, these all steps for the evaluation. So finally, मैं summary बता देता हूं। If f of xy, which is a function of two variable, is a homogeneous function of degree n, then by Euler's theorem, number one, x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf, and number two, x square del square f upon del x square plus 2xy del square f upon del y del x del y plus y square del square f upon del y square is equal to n into n minus 1 times of f. Okay, if you don't have any doubt, then we can move to questions. Okay, so the first question is, verify Euler's theorem for the function fxy is equal to x plus y upon under root x plus under root। आपको यूलर्स थ्योरम को इस फंक्शन के लिए वेरीफाई करना है, राइट? मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to n जो भी इस फंक्शन की डिग्री होगी वो n और मल्टीप्लाई में f। आपको ये प्रूफ करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? ऐसा कोई है जिसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर वो x del f upon del x है या सिर्फ x f x है? कौन सा है सर? आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? शुभ्रो चक्रवर्ती। आपकी फर्स्ट क्लास है क्या ये? So bro, this is your first class? नो सर। No. आपने मेरी लास्ट क्लासेस अटेंड की है? हाँ सर। इसका मतलब क्या होता है सुब्रो? fx का मतलब क्या होता है सुब्रो? सर सडनली भूल गया था सर, अब याद आया। अब याद आ गया? हाँ सर। हाँ रिवीजन करते हो सुब्रो? हाँ सर। अगर रिवीजन करते हो तो कैसे भूल गए बेटा? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? सो दिस इज del f upon del x एंड दिस इज del f upon del y। अब याद आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। सो इस फंक्शन के लिए हमें
यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब हमें ये एक्सप्रेशन वेरीफाई करना है, ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें n पता होना चाहिए। n का मतलब यह है कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री तभी फाइंड हो सकती है जब आप इस होमोजीनियस फंक्शन को x रेज टू द पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में लिखें। x रेज टू द पावर n एनी फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में लिखेंगे, तभी पता चलेगा आपको कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन ना हो, लेकिन अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उसकी डिग्री का पता हम तभी कर सकते हैं जब इस गिवन फंक्शन को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। अगर ये गिवन फंक्शन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो x रेज टू द पावर n है, ये n इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। फॉर दिस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लीजिए। सबसे पहला क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए विच इज x, और डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लीजिए विच इज अंडर रूट x। ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए आपने क्या किया, न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन x ले ली और डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन अंडर रूट x ले ली, और ब्रैकेट में क्या बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस y अपॉन x, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 1 प्लस अंडर रूट y अपॉन x। तो कभी भी गिवन फंक्शन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ये पता लगाने के लिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, if it is homogeneous then what will be the degree of this homogeneous function, then first we have to convert this given function into this form, and for this just take highest power, take common highest power of x from numerator and take highest power of x, take common highest power of x from denominator। आप y की भी हाईएस्ट पावर कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। अगर आप y की हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं तो फिर फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं ये चीज, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक पैटर्न, स्टैंडर्ड पैटर्न चूज कर लीजिए, या तो ये बनाइए या फिर ये बनाइए। तो हमने x की हाईएस्ट पावर कॉमन लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो x अपॉन अंडर रूट x हो गया अंडर रूट x, ऊपर हो गया 1 प्लस y अपॉन x, और नीचे हो गया 1 प्लस अंडर रूट y अपॉन x। And now you can see that this is nothing but a function of y upon x. So this whole function can be written as x raised to the power 1 by 2 as it is, and any function of y upon x. कैपिटल f of y upon x लिखिए, या g of y upon x लिखिए, या phi of y upon x लिखिए, एक ही बात। So this is x raised to the power 1 by 2 and this is some function of y upon x. तो देखिए हमने जो गिवन फंक्शन था उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करते ही हमें इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री पता लग गई। द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन इज 1 by 2। The degree of this homogeneous function is 1 by 2. Right? अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to n का वैल्यू 1 by 2 f। मतलब हमें प्रूव करना है ये वाला x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to 1 by 2 f। वेरिफिकेशन करना है इसमें, और वेरिफिकेशन में क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व किया जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे भी हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब
मतलब पहले LHS सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। LHS सॉल्व करने के लिए पहले हम फंक्शन f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फंक्शन f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसे y से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड करेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे, आंसर 1/2 टाइम्स ऑफ f आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे किया गया है x del f अपॉन del x, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। del f अपॉन del x का मतलब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, और del f अपॉन del y का मतलब भी आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। तो ये देखिए x del f अपॉन del x इवैल्यूएट कर लिया, सिमिलरली y del f अपॉन del y इवैल्यूएट कर लिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y, इसको पूरा सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद में बना 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस y अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y। और आपको पता है कि ये जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द गिवन फंक्शन f। तो ये प्रूव हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ f, हेंस प्रूव, हेंस वेरीफाइड। आप देख सकते हैं हमारा f जो है ये वाला ही है, x प्लस y अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y। तो अगर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को पता करेंगे कि गिवन फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है। उसके लिए आप गिवन फंक्शन को सबसे पहले x रेज टू द पावर n एनी फंक्शन ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और x रेज टू द पावर n एनी फंक्शन ऑफ y अपॉन x में कन्वर्ट करने के लिए आप उस फंक्शन में न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली x रेज टू द पावर n एनी फंक्शन ऑफ y अपॉन x में कन्वर्ट हो जाएगा। x रेज टू द पावर n से हमें डिग्री का पता चल जाएगा कि इसकी डिग्री ये वाली है, होमोजेनियस फंक्शन। डिग्री के बेस पे हमें प्रूव करना होगा x del f अपॉन del x प्लस y del f अपॉन del y इज इक्वल टू nf, n इज डिग्री। और अगर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है तो आपको पहले del f अपॉन del x इवैल्यूएट करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद में del f अपॉन del y इवैल्यूएट करना होगा, y से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करना होगा। और जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली वो 1/2 टाइम nf आ जाना चाहिए। यहाँ पे n का मतलब 1/2 है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ f आ जाना चाहिए। So this is one of the type of the Euler's theorem question, which is the verification question. Guys, any doubt? Please ask me. Any doubt in this question? Please ask me. No, sir. Very good. So this is it for today. You may ask any doubt if you have. I am seeing the chat box. There is no doubt in the chat box. I am waiting for your doubt. If you have any doubt, then still we have 2 or 3 minutes. Please ask me. आपको आज की क्लास का रिवीजन जरूर करना है। इट्स वेरी मैंडेटरी। आपको आज का क्लास का रिवीजन बिल्कुल करना ही करना है, क्योंकि आज की क्लास में हमने ये देखा है कि अगर होमोजीनियस फंक्शन हो तो यूलर्स थ्योरम के 2 स्टेटमेंट होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं, और होमोजीनियस फंक्शन को किस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो टुडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। Please revise this class before attending the next class.
I repeat, please revise this class before attending my next class, which will be held on, I think, Monday. Okay, if you don't have any doubt, so Tisha is asking something. Tisha is asking that, sir, in case of verification, how will we understand that we have to use which Euler's theorem equation to prove the statement? Yes, Tisha, you have a valid question. Always, if there is a verification in the question, then always prove first statement only, because second statement is quite lengthy. Because in second statement, there is second order partial derivatives, which will be very lengthy. So always verify by first statement only. और वैसे भी आपने देखा है दिशा, सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड फॉर्मूला जो है, उसका जो प्रूफ करवाया है वो मैंने फर्स्ट फॉर्मूले से ही करवाया है. तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला वेरीफाई हो गया तो ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाएगा. Yes, sir. So for verification question, always verify for first formula. Okay, sir. Okay, Tisha. Any other question? Please ask. Anybody? Okay, I repeat, please revise this class before attending to the next class, because in next class we will do some more advanced questions of application of Euler's theorem, which can be understood only after revision of this class. I request all of you. Okay, so thank you very much all of you. Be safe and be healthy. Thank you, sir. Take Thank you, care. sir. Take care. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much.